सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। बीरा बीरा कर रही बीर भय बैराए। बीर चले घर अपने बहन बिरह जल जाए। बीरा बीरा कर रही बीर भय बैराए। बीर चले घर अपने बहन बिरह जल जाए। बाबुल कै घर बेटड़ी बाली बालै ने। जे लोड़ है वर कामणी सतगुर सेवह ते। बिरलो ज्ञानी बूझणो सतगुर साच मले। ठाकुर हाथ वडाइया जय पावै तैं दे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दीन दुनिया दे मालक दसां पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप प्रतख गुरु समर्थ गुरु अकाल मूरत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र दरबार अंदर शोभायमान सत्कारयोग सन्मान योग साध संगत जीओ। आप जी ने हजूर दे चरनां विच नतमस्तक हो के अपने जीवन नूं मस्तक नूं भागशाली बनाया है। चलदे लड़ीवार प्रकरण विच शाम दे दीवान अंदर अज दे इस श्लोक विच जो कि 52 दखणी ओंकार बाणी विच गुरु नानक साहब जी ने बख्शिशां कीतियां ने। अज दा 40 नंबर श्लोक है। इस विच भाव अर्थ समझने अत जरूरी ने। जिवें कि गुरु साहब ने शब्द वरते ने बीरा बीरा कर रही बीर भय बैराए। बीरा दा अर्थ है वीर भरा। जिवें एक बच्ची अपने घर विच माँ बाप दे घर विच है और उन्हें अपना स्नेह जिथे ओदा जन्म होया जिस थां ते ओदी पैदाइश है कुदरती तौर ते उस बच्ची दा स्नेह प्यार उस घर विच होना कुदरती है। जिथे वो जन्मी
ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬਾਲਪਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮੋਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹ ਚੌਂਕਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 1430 ਅੰਗ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ। ਤਿਆਗ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਤ। ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਛੁੱਟਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਛੁੱਟਦੀ ਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਿਮਰਨੇ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਸਹੀ ਧੁਰੇ ਤੇ ਨੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੋਗਣ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੌਤ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਨ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਧਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਗੀਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਧਰਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਪਰਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ 40, 50, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਬਦਲ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਲਟ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣਾ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਨਾ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਬਣਾ, ਇਸੇ ਵਕਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੰਧ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ, ਜਿਤ ਨਹਾਤਾ ਕੌਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂ ਹੰਸ ਬਣਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਵਰਗ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਖਾਈ, ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰਲਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਧਰਮ ਹੈ।
अंदर दे ख्याल बदल जाने, अंदरले पुराने जीवन की मौत हो जानी, नवे की शुरुआत हो जानी। इस करके सतगुरु उसनूं कहंदे ने धर्म के संपूर्ण अर्थ की ने, इस देह विच रहिंदियां होइयां ही साडे अंदर जो पुरानी मत है, पुराने ख्याल ने, पुरानियां धारनावां ने, उन्हां दा सिर वड्ड देना अंदरों, उन्हां नूं खत्म करना है, मारना है उन्हां नूं। ते मरण तो बाद नवीं धारनावां, नवीं धारनावां बहुतियां ने, इक्को ही धारना है। वो धारना गुरु साहब ने कही कि गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। बहुते ख्यालों की मौत ते एक ख्याल का जन्म, उहदी याद, उहदा प्रेम, उहदी खिच अंदर लगातार बनी रहनी। तो संपूर्ण अर्थ ने धर्म दे एक मौत ते एक जन्म। इसे वक्त तां ही गुरु साहब ने कहा जीवत मरो, शरीर तो अजे जिउंदा है ते इहदे मौत का डर तेरे सिर ते खड़ा होया। इहदी दवाई इको है, मौत दे आउण तो पहलां पहलां उन्हां चीज़ां नूं मिटा दे जिन्हां ने मौत लियाउणी है, होर कोई रस्ता नहीं। मौत तो बचन की दवाई गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच है। जद कि कबीर साहब ने कहा किसी वैद कोल, किसी डॉक्टर कोल इहदी दवाई नहीं। वैद कहे हूँ ही भला दारू मेरा बस, ये तो वस्त गोपाल की जब भावै लै खस। पर गुरु ग्रंथ साहब दे कोल दवाई है मौत की। वो कहते ने आ तेनू मैं वो चीज़ां पहले ही पासे हटा के विखा दियाँ जिन्ना करके तेरी मौत आउंदी है, नहीं तो मौत आएगी क्यों। मौत के अर्थ ने जिस थां ते असी गलत थावां ते असी कब्जा करके जीवन विच बैठे उन्होंने छडाउणा, मौत उन्होंने कहते। साडी जिंदगी दे विचों गुरु ग्रंथ साहब जी वो चीज़ां पहले ही मार देंदे ने जिन्हां वास्ते मौत ने आउणा है। ते जदों अंदरों खत्म हो गईयां उस वेले मौत दे आउण दी कोई जरूरत रहिंदी नहीं, वो आदमी आप चला जांदा है। तुसीं बाणी विच पढ़ोगे कि उन्हां नूं सद्दिया जांदा है, उन्हां नूं घल्लिया जांदा है। वो लोग मौत उन्हां नूं धू के नहीं ले जांदे, वो अपनी मर्जी नाल इस जमीन तो जांदे ने। उन्हां दा जाना मजबूरी नहीं। उन्हां वास्ते भाई गुरदास जी ने कहा गुरमुख जन्म सवार, दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए, सच्चा पिड़ मलिया, गुरमुख चित अडोल अहिल ना हलिया। ऐसे लोग मरण तो पहला मौत तो पार चले जाते हैं, इस करके मौत उन्हां तक जाती नहीं। ये है धर्म की संपूर्ण परिभाषा। बाकी आ जिहड़ियां खिद्दू खेड जिहड़ी खूंडी दियां खेडां तुसीं रोज़ सारे जगत विच धर्म दियां परिभाषावां सुनदे हो, ये सिर्फ बंदे दा मन परचावा है। तो कबीर साहब ने नूं कहा लोगन राम खिलौना जाना, ये सिर्फ खेडां ने, धर्म का इन्हां नाल कोई नाता नहीं। इस करके सतगुरु कह रहे ने इस जगत के अंदर गुरु के शब्द की कमाई कर, ते गुरु की शब्द की कमाई दे नाल एक लोक नूं छड्ड के दूसरे लोक विच प्रवेश कर जा। इस घर नूं छड्ड, इस सुभाਅ नूं छड्ड, इस जिंदगी नूं त्याग। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस वक्त दी ये हालत इस शब्द विच आपां अखरी अर्थां नूं नालों नाल करिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं पुछदा है वो ब्राह्मण कि इस जगत दे अंदर जदों मनुख दा पुराना जीवन मरदा है उदों दी हालत किहड़ी, किवें दी हालत। भाई गुरदास जी ने लिखिया ना, मुरदे दा जिक्र कीता, मुरदा होए मुरीद ना गल्ली होवना। कबीर साहब ने बचन कहे ना, कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सिर दिता मन दिता, जीवन सौंपिया ते जीवन प्राप्त किया है। ये सिर की खेड है। ये कबीर साहब होर शब्द कहते ने, कहते जो तो साध पिरम की शीश काट कर गोए। गोए दा अर्थ है गेंद। हाकी की खेड तुसी वेखी होनी, खूंडी की खेड। पुराने समय में पंजाबी विच भारत विच इहनूं खूंडी कहा जाता है। कबीर जी कहते तू परमात्मा दे नाल जे खेड खेडनी है ना धर्म की, ते गेंद तू दुकान तो खरीदन ना जाई, अपना सिर वड्ड के उसकी गेंद बना दे।
कबीर जो तो साध पिरम की शीस काट कर गोए। शीस का इत्थे अर्थ फिर ध्यान देना, क्योंकि अगे अज के शब्द विच बचन है बाणी बिरलो विचार सी। साध संगत जी बाणी दी विचार समझण वास्ते सानू गुरमुख बनना पैना, उस तल ते आना पैना। बाणी जिथे उचारी इत्थे जिवें मैं कह रहा भी शीस काट कर गोए, इहदे अर्थ ये नहीं भी आ शीस कटना है, ख्याल रखना। इहदा अर्थ फिर मन है, मन देना, गुरु नूं सौंप देना। उन्होंने क्या शीस काट कर गोए, ते फिर एक शब्द होर क्या कहते खेलत खेलत हाल कर। हाल शब्द जिहड़ा जिहड़े पुराने सूफी फकीर सन, वो जदों परमात्मा की याद विच बहुत ही तेजी विच गाउंदे सन, उन्होंने कहते सन हाल करना। तेजी विच बेखुद हो जाना, पता ही ना रहना आले दुआले कोई है भी कि नहीं, इन्नी तेजी विच गाउणा। शरीर का आपे ही भुल जाना। कबीर साहब कहते भी खेड तू रब दे प्रेम की खेडना, पर खिडारी तो अजे तू भी नहीं वेख्या जिहड़ा संसार की खूंडी खेडदा। तुसीं वेख्या आ हॉकी खेडते ने खिडारी, लखां लोकां उन्हां लोक वहिंदे ने, उन्हां लखां अखां वहिंदियां, उत्ते कैमरे लगे ने, टीवी ते पता नहीं कित्थे कित्थे जा रहे। सारे लोग उन्हां वल्लों वहिंदे पर वो नहीं किसी वल्लों वहिंदे। ये क्यों उदाहरण दिती? सारे लोग लखां लोग उन्होंने वेख रहे हैं, पर वो किसी वालों नहीं वहिंदे। वो किधरों वहिंदे ने? उन्हां दा केंद्र बिंदु बॉल है, गेंद उहदे उत्ते टिकिया होया। वो अपना ध्यान छड्ड के नहीं जाणगे किते, क्योंकि उन्होंने पता ध्यान निकलिया नहीं तो हार हुई नहीं। जिहड़ा आदमी कबीर साहब कहंदे भी खेड ते तू धर्म की खेडदा पिया ते पुछदा लोकां नूं फिरना भी मैनूं फलाना ना वेख लै जी, फलाना ना कह जा, तेरे नालों तो संसारी खिडारी चंगा है। जिधर गेंद वल जांदा ध्यान उहदा गेंद विच, लोकां वल नहीं वहिंदा, हालांकि लखां लोग उहनूं वेख रहे। आपां हुण धर्म कमाउणा हुंदा है, 100 सलाहां करीदियां ने, फलाना की कहेगा, वो की कहेगा जी, अजे तो उम्र नहीं हुई, अजे तो फलाना नहीं, शीशे अगे खलो के वेख लीए। 100 ते बंदा सलाहां करदा, धर्म दा इहदे नाल नाता की है? धर्म है एक कुर्बानी, धर्म है जीवन का जुआ खेड देना। इस करके कहते खेलत खेलत हाल कर। उस खिडारी वाल वेख जिहड़ा कूंडी खेडदा, हाकी खेडदा है, उहदे सिर तो लैके पैर दे अंगूठे तक पसीना चोई जाता है, पूरा जोर लाउंदा है ना, पूरी ताकत, अद्धा अद्धा नहीं, बेहोश जिहा नहीं हो, वो विचों विचों टुटा नहीं। हुण नाम तो आपां भी जपने आ, कदी नाल दे नूं वेख ले जपदा कि नहीं, मैं भी थोड़ा जिहा बोलां, जे नाल दा कुछ है तो मैं भी करना, किते मेरे वल्लों वहिंदा तो नहीं पिया कोई। ते कबीर साहब कहंदे उहदे वल्लों वेख, उहदियां पैरां दे उत्ते हाकियां वज वज के ते बॉल वज वज के, सट्टां वज वज के, पर उहनूं दर्द दा पता ही कोई नहीं लगदा, किते है भी कि नहीं। इसलिए उदाहरण दिती, खेलत खेलत हाल कर, जो कुछ होए सो होए। की होवेगा? होण बारे सिट्टा कड्ढण बारे सोची ना, क्योंकि ये मार्ग इत्थे तां अजे संसारक रस्ता सी, संसारक नदी सी, ते उत्थे पता भी लग गया उन्होंने सोहणी नूं भी ये घड़ा कच्चा है, पता लग गया सी उस जिस दिन डुब के मरी। संसारक प्रेम सी। उन्हें जदों उस घड़े नूं चुक्या जिहदे उत्ते रोज़ तर के चना तो पार जाती सी, उन्हें घड़ा खड़का के वेख्या ना, जदों उंगल मारी उत्ते पता लग गया भी घड़ा है कच्चा है, पक्का नहीं, खड़किया नहीं हो। पर उन्हें कहा भी जे अज कच्चा घड़ा वेख के वापस मुड़ गई तो इस प्रेम नूं कलंक लग जाएगा, मौत आउंदी है तो आ जाए, अज पिछे नहीं मुड़ना, डुब के मर गई उहदे विच। ये कच्चा संसार दा प्रेम है। तो सतगुरु कहते तेरे ते घड़े भी बड़े कच्चे ने, तू फिर उन्होंने खड़काई जाना भी किते डुब ना जावांगे। ये है वो रस्ता, ये चनाव उस तो किते वड्डी है, किते पार दी है। इस करके सतगुरु इत्थे कह रहे ने, कबीर जी कहते ने जो कुछ होए सो होए, होण दा ख्याल ना करी, इस राह ते तुर। पर इत्थे कबीर सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस ब्राह्मण नाल गल पै करदे ने, बीरा बीरा कर रही
ਵੀਰ ਭੈ ਬਹਿਰਾਏ। ध्यान देना, शब्द बहुत महंगे ने। बाणी हुण आप जी अखंड पाठ भी कराउंदे हो, आप भी करते ने गुरमुख सहज पाठ। तो अजकल इन्ने साधन ने, बाणी नूं जे थोड़ा जिहा समझ लिया जाए तो सहज पाठ होर आनंददायक, होर आनंद आएगा। हुण ये बाणी बड़ी महंगी, आप जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाने। गुरु नानक साहब उस ब्राह्मण नूं कहिंदे कि जिदन किसी मनुख का मन मरन लगता है ना गुरु के शब्द नाल, एक बारी मन रोएगा तो अपने पुराने भरावां नूं याद करेगा, पुरानियां आदतां नूं ते बीरा बीरा कर रही उन्हां नूं याद करेगा। किधर जांदे हो, छड्डना सौखा है? जिहड़ियां आदतां नाल चंबड़ चुकीआं ने पुरानियां। तुसीं वेखना आदमी दा मनोविग्यान है, अपने शरीर नूं मले कितों थोड़ी जी मैल लत जाए ना, उहनूं नहीं छड्डदा किन्ना चिर मली आउंदा है। नाल लगी हुई चीज़ का स्नेह इन्ना। आदमी अपने नहुं लाउंदा, कई बारी नहुं नहीं छड्डदा, 15-15 मिनट उन्होंने मली जाता है, शरीर का अंग है उहदे दा। ते जिहड़ियां अंदरलियां आदतां ने जदों गुरु का शब्द अंदर नूं मारदा है ते विचों वो भजदियां ने ते मनुख दी अखां विचों पानी वहिंदा। वो विराग कोई नहीं हुंदा, आपां कह दिंदे विराग हुंदा, विराग नहीं हुंदा, अंदरों मौत हुंदी है बंदे दी, मरदा है, नाम उहनूं मारदा विचों, पुरानियां आदतां तोड़दा है। उदों फिर वो पुराना मन बीरा बीरा कर रही, बीर भै बहराए, पर नाम उन्हां नूं वढ के पुराने सुभावां नूं आदतां नूं वखरियां कर दिंदा। बीर भै बहराए दा अर्थ विरोधी हो गया, अपने ही जीवन दे नाल विरोध हो गया, अपने अवगुणां दे नाल हुण बनदी नहीं। बीर भै बहराए। सतगुरु अगे बचन कहंदे, बीर चले घर अपने, बहन बिरह जल जाए। ये अधोगति का जीवन है। धर्म के जीवन दे विच, धर्म के मार्ग ते तुरिया ना, एक वक्त ऐसा हुंदा है उत्थे ना बंदा धर्मी हुंदा ते ना संसारी हुंदा, विच खड़ा है। एक ऐसी थां है साडे जीवन विच, उहनूं पार करना बड़ा कठिन है। पिछला थोड़ा जिहा छड्ड लैंदे आ, ज्ञान पढ़ के सुन के, गुरु की गल सुन के, अगले नाल थोड़ा जिहा नाता छुटदा है। पुराना छड्डण नूं जी नहीं करदा ते अगले वल भी बंदा दौड़दा, उहनूं कहंदे अधोगति। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी बाणी विच इहनूं अधमाई कहा है, न छूटी अधमाई। मन दा अध विच खलो जाना, फैसला नहीं लै सकदा। उधर गुरु का प्यार भी जागदा है, उधरों धर्म का मार्ग भी चंगा लगता है, पर पिछे जगत विच कीते हुए कारजां का अभ्यास पिछे नूं खिंचदा है। उस राह दे उत्ते जाके सतगुरु कहंदे फिर गुरु दे दिते हुए झटके की लोड़ है, बंदा एक पासे तुरे। बीर चले घर अपने, वो पुरानियां आदतां मन दे पुराने सुभाਅ ते अपने घर नूं चले गए, भाव उन्हां दी मौत होण लग पई। बहन, बहन का अर्थ है पर ये जीव रूपी भैन, बिरह जल जाए, उत्थे ये सड़ जाती है। ना तो उन्होंने छड्डण नूं जी करदा पुराने सुभावां नूं, ते ना गुरु नूं छड्ड सकदी, विचकार खड़ी। इस करके कहंदे बाबुल कै घर बेटड़ी, बाली बालै नहीं। इहदा कारण इक्को सी भी अज्ञान रूपी पिता दे घर विच रह के इनू हुण वो घर छड्डण नूं चित नहीं करदा, संसार त्यागण नूं जी नहीं करदा। ते बाबुल दे अर्थ ने पिता, पिता दे अर्थ ने अज्ञान। अज्ञान रूपी पिता दे विचों ये जिहड़ी मैली मत दा जन्म होया सी ना, वो अपने पिता अज्ञान दे घर नूं छड्डना नहीं चाहुंदी, क्योंकि बाली बालै ने उहदा स्नेह जिहड़ा ना प्यार संसार दे पदार्थां दे नाल बझा होया। सतगुरु फिर उत्थे उपदेश देंदे ने, जे लोड़ै वर कामणी सतगुर सेवै तेह। कहंदे भाई जे तू इस जगत नूं जिहड़ा कि दुखदाई है, जिहदे नाल एक बारी मन चंबड़ गया, परत के छड्डण नूं तैयार नहीं हुंदा। जिहड़ा जगत इस तरह दा जिवें एक ढिला गुड़ जिहदे उत्ते मक्खी खाण वास्ते बहिंदी है, पर गुड़ ते कित्थे खाना सी, उहदे नाल खंभ चंबड़ गए, परत के उड़नों रह गए, मौत का शिकार बन गए। इस जगत तो छुट्टण का तरीका होर कोई नहीं
क्योंकि यही जगत ते इहदी पकड़ ते इहदे विच फसना दुख रूप है। इहदे विचों बचन दा इक्को ही तरीका है, जे लोड़ है वर, वर दा अर्थ है पति। जे तू पति परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहुंदा है, भाव इस जगत तो छुटना चाहुंदा है, इन्हां दुखां तो संतापां तो अपने आप नूं खलास करना चाहुंदा है, ते तेरे कोल इक्को ही तरीका है। उन्होंने सतगुरु ने कहा, सतगुरु सेवह तेह, तू अपने पूरे गुरु की सेवा कर। गुरु की सेवा, हुण गुरु की सेवा की है? कुछ ऐसिया चीज़ां ने जिन्हां बारे वखरे वखरे साडे विचार ने। गुरु की सेवा किसनूं कहंदे ने? गुरु की सेवा के की अर्थ ने? क्योंकि सेवा दे बहुत सारे रूप बाणी दे विच लिखे हुए ने। एक थां ते शब्द आउंदा है, अनेक भांत कर सेवा करिए। अनेक भांत, अनेक भांत का मतलब अनेक प्रकार। नहीं तो सेवा तो वेखो कई तरह की सेवा है, लंगर की सेवा, माया की सेवा, होर कई प्रकार की सेवा है। इत्थे अनेक भांत, अनेक भांत का मतलब कई तरह। उन्हां विचों एक सेवा है संत की सेवा, नाम ध्याइए। गुरु की सेवा का एक हिस्सा है नाम का ध्यान करना, नाम जपना। जिवें इत्थे आप ध्यान करते हो जां जपते हो, इक्को चीज़ दे वखरे वखरे नाम ने, ये उहदा ध्यान करना, ये भी एक सेवा है। और ये सब तो वड्डी सेवा है। ख्याल रखना, हत्थां नाल 8 घंटे सेवा करनी ते सिमरन 8 मिनट करना, ये बराबर है। ख्याल रखना, 8 मिनट सिमरन करना, सिमरन पूरी तरह करना। और मैं भी बेनती करदा, सिमरन दे भी कई तरीके ने। जिवें कल आपां 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ बुलाया सी ना, सिमरन है कि कितों पता लगता भी साडा मन टिकिया कि। एक तो है भी मन नूं रोकण वास्ते जिवें आपां करने लगातार करी जाना करी जाना। पर तुसीं कदी वेखना, कल आपां थोड़ा जिहा चिर बोलिया सी भी 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ एक पासे सिंह फिर बीबियां, ते जदों विच गैप पैंदा ना, थोड़ा जिहा असीं चुप करने आ, एकदम मन भजदा है। उत्थे वेखना भी किन्ना कुछ टिकिया। जदों आपां विच गैप विच जाने उदों वेखना भी मन सुणदा है कि नहीं दूसरे पासे आउंदी आवाज़ नूं, उदों टिकदा है कि नहीं। ये तां लगातार है ना। किसी नूं एक जिवें कोई बहुत वड्डा पुराना चोर होवे ते पुराने चोर नूं मनाउण वास्ते ना, फिर जदों उहनूं मनाउणा हुंदा ते फिर लगातार पता चलदा ते लगातार तां मनदा ये वो है चीज़। नहीं तो मनदा नहीं, पूरी तरह चोट ना वजे। पर जदों थोड़ा जिहा मनन लगे ना, उदों थोड़ा जिहा घट करके उहनूं पुछ भी लेना चाहिए भी तू कित्थे कित्थे चोरी कीती है। जे मने होए नूं फिर मारी जाइए तो उन्होंने वक्त नहीं मिलता दसन। ये एक अगे जाके बख्शिश है। जिवें किसी ने कहा भी गुरु नानक देव पातशाह जी जदों 13-13 कहंदे सी ना, दुकान ते बैठ के सच्चा सौदा जदों उन्होंने कीता 13-13 करी जान। वो कहंदे भी सतगुरु जदों 13 कहंदे सन विच रुक जांदे सी। एक बारी 13 कहंदे ते रुक जाते विच। किसे पूछा जी विच बंद क्यों कर दो, लगातार कहो। तो हजूर ने कहा भी जदों मैं एक बारी 13 कहना तो मेरा वाहगुरू अगों मैनू कहंदा नानक तू मेरा, फिर मैं उन्होंने कहना तेरा, फिर अगों आवाज़ आउंदी है तू मेरा। इहनूं कहंदे दुवल्ली संबंध, दोवां पासों नाता। जदों असीं उहनूं आवाज़ देनी उदों अगों सुननी भी है भी वो भी कह रहा कि नहीं, उहदी आवाज़ भी है कि नहीं। इस तरह उहदा नाम उच्चारण करना ये बड़ी वड्डी सेवा है।
ध्यान नाल उचारण करना, उहनूं याद करना, प्यार विच तुरना, ਉਹਦਾ जस करना। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਬਿਰਲੋ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਮਲੇ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਾਗੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਹੱਥ ਵਡਾਈਆਂ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੱਲਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਘੁਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ। ਬਾਣੀ ਵਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਜ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ